Hello everyone, today we are going to learn form number with tricks. In any pharma competitive examination, there is a high chance that one or two question from form number. किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान के चलिए, फार्मासिस्ट एग्जाम हो या एग्जिट एग्जाम हो या जीपीआर या नाइपर एग्जाम हो, फॉर्म नंबर से लगभग एक दो क्वेश्चन बनता ही है. सो आज हम लोग फॉर्म नंबर को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ. सो व्हाट इज द ट्रिक? फर्स्ट, सेल लाइसेंस. सेल लाइसेंस के लिए हम लोग को कुछ कुछ कोड याद रखना पड़ेगा. पहले तो फॉर अदर देन CC1 इट विल बी 20. For schedule CC1 it will be 21 and for schedule X it will be 20. I repeat, for other than CC1X, जहाँ किसी में other than CC1X आएगा वहाँ पे फॉर्म नंबर 20 आएगा. For schedule CC1 it will be 21 and for schedule X it will be 20. होलसेल, जहाँ किसी भी होलसेल वर्ड आएगा सेल लाइसेंस के लिए वहाँ पे होलसेल वर्ड में B यूज होगा कोड. होलसेल प्लस मोटर व्हीकल BB, होलसेल प्लस मोटर व्हीकल के लिए कोड क्या होगा? BB. रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए कोड क्या होगा? A. एंड फॉर लोन लाइसेंस द कोड विल बी A और E. सो फॉलोइंग द सेम we'll going to learn the sale license with tricks. फॉर रिटेल लाइसेंस, रिटेल किसी भी रिटेल लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए हम लोग को पहले तो अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 19. For retail license, we have to apply on form number 19 and it will be grant on for other than CC1. For other than CC1, it will be form number 20, and for schedule CC1, it will grant on form number 21, and for schedule X, it will grant on 20F. For wholesale, फॉर होलसेल के लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 19 में फॉर अदर देन CC1. जैसे कि हम लोग ने पहले ही याद किया है, फॉर अदर देन CC1 इट विल ग्रांट ऑन फॉर्म नंबर 20B एंड फॉर शेड्यूल CC1 इट विल ग्रांट ऑन फॉर्म नंबर 21 एंड फॉर शेड्यूल X इट विल ग्रांट ऑन 20G. सो हम लोग जानेंगे CC1 क्या है. CC1 है लिस्ट ऑफ द ओरल एंड पेरेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. शेड्यूल X is for habit forming drugs like phenobarbital etc. Next, for wholesale motor vehicle, for wholesale motor vehicle we have to apply on form number 19 AA. It will grant on for other than CC1 it will grant on form number 20 BB. For schedule CC1 के लिए it will grant on 21 BB. For restricted लाइसेंस के लिए जैसे कि हमने पहले ही कोड याद किया है, रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा 19 फॉर्म नंबर A में. A कोड पहले ही हमने याद किया है. रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस जहाँ किसी भी आएगा वहाँ में A यूज होगा. It will grant for other than CC1 it will grant on 20A and for schedule CC1 it will grant on 21A. Next, sale license for homeopathy. होम्योपैथी किसी भी होम्योपैथी ड्रग को सेल करने के लिए we have to apply on form number 90B and it will for retail it will grant on 20C and for wholesale it will grant on 20D. Very easy. For homeopathic drug we have to apply on form number 19B and for retail it will grant on 20C and wholesale it will 20D. So homeopathic के लिए क्या क्या फॉर्म आएगा? We have to apply on form number 19 and for retail 20C and for wholesale 20D. Next, manufacturing license for other than CC1X. CC1X को छोड़ के हम लोग अगर अप्लाई करेंगे फॉर्म नंबर 24 पे and it will grant on 25. For manufacturing a drug we have to take license for other than CC1X we have to apply on form number 24 and it will grant on 25. लोन लाइसेंस, जैसे कि हम लोग ने पहले ही याद किया है, लोन लाइसेंस को में जहाँ किसी लोन लाइसेंस आएगा वहाँ में A कोड यूज होगा. सो फॉलोइंग द सेम वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर 24A and it will grant on 25. For loan license we have to apply 24A and it will grant on 25A. For CC1 but not X. So manufacturing license CC1 not X. वी हैव मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए दो फॉर्म याद करना पड़ेगा.
27 फॉर्म में हम लोग को तो अप्लाई करना पड़ेगा एंड इट विल ग्रांट ऑन 28 फॉर लोन लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग loan license it will be 27A and it will grant on 28A. blood bank और whole blood component. blood bank कौन सा शेड्यूल में आता है? blood bank is in schedule F. for blood bank we have to apply on 27C and it will be grant on 28B. for large volume parental sera and vaccine, for large volume parental sera and vaccine we have to apply on 27D and it will be granted on 28D. drug examination test analysis form number 29. किसी भी ड्रग को एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस, मान के चलिए किसी भी ड्रग को हम लोग ने CDL को दिया है, वो टेस्ट करेंगे, एनालिसिस करेंगे. वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 29. फॉर मैन्युफैक्चरिंग of homeopathy we have to apply on 24C and it will grant on 25C and renewal 26C. for आयुर्वेद उनानी एंड सिद्धा, फॉर आयुर्वेद उनानी और सिद्धा के लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 24D में एंड इट विल बी ग्रांटेड ऑन 25D. लोन लाइसेंस में जैसे कि हम लोग ने पहले ही याद किया है, लोन लाइसेंस में A और E आएगा. वी हैव टू अप्लाई ऑन 24E and it will be grant on 25B. कॉस्मेटिक वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी एग्जाम में कॉस्मेटिक का फॉर्म नंबर पूछा तो ध्यान से कॉस्मेटिक का फॉर्म नंबर सब लोग सुनिए. फॉर कॉस्मेटिक्स वी हैव टू अप्लाई 31. फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स we have to apply on form number 31 and it will be granted on form number 32. for loan license we have to apply on 31A and it will be granted on 32A. next, laboratories we have to apply form number 36 and it will grant form number 37. रिन्यूअल के लिए लैबोरेटरीज में कौन सा फॉर्म आएगा? फॉर्म नंबर 38 एंड लैबोरेटरी से किसी भी रिपोर्ट मिलेगा फॉर्म नंबर 39 में. सो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. जिसी फॉर्म लैबोरेटरी के फॉर्म में वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 36. लैबोरेटरी जहां भी आएगा तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 36 में एंड इट विल ग्रांटेड ऑन 37. रिन्यूअल, फिर से रिन्यू करने के लिए फॉर्म नंबर 38 में हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा और लैबोरेटरी रिपोर्ट आएगा फॉर्म नंबर 39 में. सर्टिफिकेट फॉर सेल लाइसेंस का सर्टिफिकेट के लिए 21C सबको याद रखना पड़ेगा. देन रीपैकिंग लाइसेंस फॉर अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1. repacking license for other than specified in schedule C1 we have to apply on 24B and it will grant on 25B. सो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. CC1 क्या है? CC1 है लिस्ट ऑफ द ओरल पेरेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. इसके रिपैकिंग लाइसेंस के लिए वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 24B एंड इट विल ग्रांट ऑन फॉर्म नंबर 25B. इंपोर्ट लाइसेंस अदर देन CC1. मान के चलिए हम लोग बाहर से कोई ड्रग मंगवा रहे हैं. फॉर अदर देन CC1 वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 8 and it will be granted on form number 10. बाहर से हम लोग अगर कोई ड्रग मंगवाते हैं अदर देन CC1 को छोड़ के तो हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 8 में एंड इट विल बी ग्रांटेड ऑन फॉर्म नंबर 10. नेक्स्ट, ड्रग फॉर इंपोर्ट लाइसेंस ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X मतलब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, फेनोबार्बिटल, ब्यूटोबार्बिटल, थायोपेंटोन, beg your pardon, habit forming drugs like phenobarbital, morphine. We have to apply on form number 8A and grant on 10A. So for import license other than for import license specified in schedule X we have to apply on form number 8A and it will be granted on form number 10A. Import license from testing, किसी भी ड्रग को बाहर से मंगवा के उसको ट्रेस करने के लिए वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 11. नेक्स्ट, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज. हम लोग अगर किसी भी ड्रग को इंपोर्ट करके हम लोग खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं वी हैव टू फॉर इंपोर्ट लाइसेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज वी हैव टू अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 12 एंड इट विल बी ग्रांटेड ऑन फॉर्म नंबर 12B. Thank you for watching.